أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ماشاءاللہ، بہت اچھی تلاوت کی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کو جتنی بھی دفعہ پڑھائیں سنیں، ہمارے احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم جتنی دفعہ اور جس بھی عمر میں پڑھیں، ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ ہم سچ میں، یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ جتنی بار بھی پڑھے نا، ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایک قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ مجھ سے ہی اور میری ہی بات ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اصل میں اور میرے رب کا تعلق ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کے ڈائلاگ ہیں۔ ہم سب دن میں کم سے کم اس کو 17 بار تو پڑھتے ہی ہیں نماز میں، کم سے کم 17 بار تو نماز میں پڑھتے ہی ہیں۔ ایک صحیح حدیث کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ہر نماز کے لیے لازمی ہے یہ۔ سورہ فاتحہ کی تو اتنی تفسیر ہے، اتنی تفسیر، ہر ایک ایک لفظ کی اتنی بڑی تفسیر ہے۔ صرف الحمد کے 3 معنی ہیں، رب کا الگ سے ڈیفینیشن ہے۔ پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی بڑی ہے الحمدللہ کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، سبحان اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اب بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا۔ یہ تو صرف سورہ کا پہلا حصہ ہے۔ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس سے محبت بھی کریں۔ جب بھی ہم کسی سے کوئی کام ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ محبت میں اس کی تعریف نہیں کرتی، کچھ کام نکلوانے کے لیے ہم ایسے ہی تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ضرورت والا تعلق۔ لیکن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور سچے دل سے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لفظ الحمد ہے نا پیارا لفظ ہے۔ چلیے اس لفظ کو ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ الحمد کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تعریف، دوسرا شکر، تیسرا دہرانا، یعنی محبت میں بار بار اللہ کا ذکر کرنا۔ صرف الحمد میں تینوں معنی ہیں، تعریف کرنا اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کرنا، محبت میں بار بار اس کا ذکر کرنا۔ اللہ سے ہمارے تینوں تعلق ہیں۔ محبت کا بھی تعلق ہے اللہ سے اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔
शुक्र इंसान को मीठा कर देता है, ना उसे कोई गम होता है ना कोई डिप्रेशन होता है, उसकी जिंदगी सिक्योर हो जाती है। इसके बरक्स नाशुक्रा इंसान हमेशा दुखी रहता है, दूसरों को ताना देता है, उसके दिल में हर वक्त के शिकवे शिकायत। अल्लाह ताला हम सबको नाशुक्री से बचाए। यहाँ ना मुझे अपनी उस्ताजा जी की एक बात याद आ गई। मेरी उस्ताजा जी कहती है ना कि कभी नाशुक्री मत करो अल्लाह की, जो भी नेमत अल्लाह ने दी है उसका शुक्र अदा करो। क्योंकि बंदा जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, वो उन नेमतों को सिक्योर कर लेता है जो अल्लाह ने दी है। और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह नेमतें छीन भी सकता है। यहाँ पर हमने देखा अलहम्द के तीन मायने। पहला, अल्लाह से मोहब्बत है, इसकी तारीफ दिल की गहराइयों से करते हैं और इसका शुक्र अदा करते हैं। अलहम्द का ये मायने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त इंसान की जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता है, आजिजी के साथ अल्लाह की मोहब्बत में वो डूब जाता है। हम कितनी भी तारीफ करें अल्लाह की कम है, क्योंकि अगर तमाम दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर स्याही, तब भी अल्लाह की तारीफ हम बयान नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ अलहम्द के बारे में इतना था। रब्बिल आलमीन में जो रब है उसका मतलब है जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला परवरदिगार। जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला परवरदिगार। एग्जाम्पल से समझते हैं ना। एक मामूली सा बीज ले लेते हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला एक बीज को जब हम जमीन में उसको पेरते हैं ना, जमीन में सिर्फ वो एक बीज होता है। कौन है जो उसको दरख्त बनाता है? ये अल्लाह सुब्हान व ताला की शान है, जो उस बीज को एक दरख्त में फलदार दरख्त में एक फलदार दरख्त बनाता है उस बीज को। ये मतलब है जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला परवरदिगार। ये सिर्फ रब है, मेरा रब है, मेरा और आप सबका रब है। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चे का पेट के अंदर परवरिश पाना और जवान होकर बूढ़ा हो जाना। अगर हम सब ये अपनी आंखों से ना देखते ना कि बच्चे का पैदा होना, बड़ा होना, पेट में पलना, हम यकीन ही नहीं कर पाते कि माँ के पेट में बच्चा पल भी सकता है। इम्पॉसिबल लगता हमको। ये तो रोजेमर्रा जिंदगी का एक एक मामला है, तो हम उस पर यकीन कर पा रहे हैं। वरना सोचिए, एक अंधेरी जगह में उस बच्चे को खाना भी मिल रहा है, उसकी परवरिश भी हो रही है, फिर वो पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और एक दिन मर भी जाता है। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे रब की। अभी हमने जाना कि रब का मतलब क्या है, जर्रा को कमाल तक पहुंचाने वाला रब। जब भी हम कुरान को समझकर हम पढ़ते हैं ना, इसके एक एक लफ्ज से, एक एक अल्फाज से, एक एक वर्ड से हम अमेज्ड हो जाते हैं। एक एक वर्ड जो भी कुरान में है, इसके मायने इतने पावरफुल, इतने अमेजिंग होते हैं। तब हमको समझ में आता है कि इसीलिए अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। ये तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही जानता है। और आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले यह आसमान धुआं था। आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही इस कायनात को अल्लाह ने सजा दिया। ये काला धुआं था। देखिए अब कितना प्यारा, कितना खूबसूरत आसमान हम देखते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना, कायनात को देखो, कायनात में निशानियां हैं, गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो। ये सब चीजें जो एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे ना, एक बीज का पेड़ बनना, इस आसमान का, इस कायनात का, हर चीज में गौर फिक्र करेंगे ना, तो हमारा ईमान और और मजबूत होता है और हमें अल्लाह से मोहब्बत होती है। क्योंकि इन सब के बनाने वाला हमें हमारा रब ही है। पहली आयत में हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे थे कि क्या था उसका मतलब। तर्जुमा देखते हैं सिर्फ हम।
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दूसरी आयत देखते हैं अब। बहुत मेहरबान रहम करने वाला है और रहमान में शिद्दत है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जब हम हम जोश में मेहरबानी करते हैं, फिर जज्बे कम हो जाते हैं, तो वो उतनी मेहरबानी नहीं कर पाते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सुनामी आई थी, जब जलजला आया था, अर्थक्वेक, तब कितने लोगों ने इमदाद इकट्ठी की और वहां पहुंचाई। यानी ये फौरी तौर पर जज्बा आ जाता है। ये है शिद्दत अर रहमान में, यानी कि फौरी तौर पर जज्बा आ जाता है देखकर। तो दुनिया में अल्लाह का मामला रहमान का है, यानी अल्लाह नेक और बद सब पर मेहरबान है। अल्लाह सबको दे देता है, लेकिन आखिरत का मामला और रहीम यानी रहम का है। अल्लाह को अपनी सब सिफात में सबसे ज्यादा अपनी और रहीम सिफत पसंद है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, फिर भी हमको हाँ मिसाल से ही समझ जाती है बहुत सारी चीजें। ये वो रहीम की सिफत है जो माँ बच्चे में नजर आती है। एक माँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो इसको वैक्सीनेशन करवाती है। और जब भी डॉक्टर ने इस बच्चे के लिए वैक्सीनेशन की लिस्ट दी होती है, तो वो बिना उसको डिले किए हुए उसे करेक्ट वक्त पर 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, ये सारे वैक्सीनेशंस वो बिना नागा किए यानी बिना मिस किए वो डलवाती है। माँ को तो पता होता है इस वैक्सीनेशन के बाद मेरे बच्चे को फीवर आएगी, बुखार आएगी, लेकिन फिर भी वो इंजेक्शन दिलाती है, क्योंकि वो बड़ी बीमारियों से उसकी हिफाजत करना चाहती है। वो फिक्रमंद होती है अपने बच्चे की। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें छोटी छोटी आजमाइशें आजमाइशें देकर हमारी इस्लाह करना चाहता है। इन छोटी आजमाइशों में यकीन जानिए बड़ी खैर होती है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही छोटी छोटी आजमाइशों से उनकी इस्लाह करता है अल्लाह। वरना दूसरों को छोड़ ही देता है अपने हाल पर, क्योंकि उन्हें छोटी आजमाइशें दें, बड़ी आजमाइशें दें, वो सुधरने वाले नहीं। तीसरी आयत है, बदले के दिन का मालिक, मालिकी यौमिद्दीन, यानी बदले के दिन का मालिक मतलब रोजे जजा का मालिक। रोजे जजा का मतलब क़यामत का दिन है। काफिरों के लिए वो अजाब का दिन होगा और मोमिनों के लिए खुशखबरी का दिन। क्योंकि मोमिन तो बीमारी हो, तकलीफ हो, ज्यादती हो, इन सब के बावजूद दुनिया में सब्र करता रहता है और आखिरत का इंतजार करता रहता है। मोमिन को दुनिया की कोई परेशानी, तकलीफ उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि मोमिन सिर्फ ये अल्लाह की खातिर करता है सब्र। अल्लाह उस दिन अदल व इंसाफ करेगा। जब इस बात का यकीन हमारे दिल में आ जाए ना, तब बड़े बड़े फैसले हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की दूर की एक झलक इंसान को हर दुख गम से पाक कर देगी। इसके बरक्स ऐश परस्त और नाफरमान को जहन्नम की एक झलक सारा ऐश भुला देगी। वो कहेंगे कि अल्लाह, आज तक किसी नेमत का नाम हमने नहीं सुना। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब से जन्नत से करीब होने वाले काम करवाए, जहन्नम की हौलनाकियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसको ना हम इसके माने को हम एक और एंगल में देखते हैं। बदले के दिन का मालिक है, यानी इसको हम डिफरेंट वे में देखते हैं। और एक यानी आज हम जो नेकी करेंगे ना, उसका बदला आखिरत में मिलेगा। और जो भी बुराई करेंगे उसका भी आखिरत में, उसका भी सजा यानी कि सजा और जजा आखिरत में मिलेगी।
इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं हम। दुनिया में गीबत और झूठ की कोई सजा है क्या? नहीं है। हमारे मुल्क के कानून में इसकी कोई सजा नहीं। हम जाकर अगर कंप्लेंट भी कर देना, उसने मेरी शिकायत, उसने मेरी गीबत की, उसने झूठ कहा मुझसे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह का रहम का तकाजा देखिए कि वो आखिरत में इसकी भी सजा देगा। अगर अल्लाह ने ये सजाएं नहीं रखी होती तो लोगों के दिलों में डर ही नहीं होता, वो खुलेआम गुनाह कर रहे होते, लोगों को तकलीफ दे रहे होते। लेकिन अल्लाह के डर से वो रुक जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया में अगर कोई एक कत्ल करे या 10 कत्ल करे, उसकी एक ही सजा है, यानी सजाए मौत। उसको एक बार सूली पर चढ़ाते हैं, सजा खत्म। चाहे उसने कितने भी कत्ल किए हों, बार बार उस मरे हुए को फिर से सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते ना। लेकिन अल्लाह के पास एक कत्ल करने वाले की अलग सजा है, 10 कत्ल करने वाले की भी अल्लाह के पास सजा है। ये है असल इंसाफ। हमारे हर एक एक्शन की सजा या जजा उस दिन मिलेगी। नेक्स्ट आयत है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पर एक ईमान वाला अल्लाह से अहद और वादा कर रहा है कि मैं सिर्फ या अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तेरी ही हम बंदगी कर रहे हैं और तुझ ही से मदद मांग रहे हैं। हमारी पूरी औकात खुलकर सामने आ जाती है कि अल्लाह, मैं बस तेरी बंदी हूँ और तेरी ही मदद चाहती हूँ, मेरी कोई पसंद नहीं। या अल्लाह, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। ऐ अल्लाह, मैं आपकी गुलाम हूँ, जो आप देंगे उस पर शुक्र अदा करूंगी। रुकिए, यहाँ 1 मिनट रुकिए और सोचते हैं, चलिए हम सब, क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? क्या सच में हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं? कुरान को समझने का असल मकसद यही है कि हम अपनी कमियों को, कोताहियों को जानकर इसको दूर करें। अपनी इस्लाह करना मकसद है। जो भी सीख रहे हैं हम इस कुरान से, इसको अमल करना जरूरी है। सिर्फ इसका इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है, इल्म हासिल करना भी जरूरी है, लेकिन इससे इस्लाह भी करनी है अपनी और अमल भी करने हैं। अल्लाह की बंदगी में आकर हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दिन में कई बार अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह आप बड़े हैं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मर्जी अपनी करते हैं, अल्लाह को मानते तो हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, तो क्या जाहिर होता है इससे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे अच्छा और क्या एग्जाम्पल होता है, हो सकता है कि हमारा बच्चा जब हमारी नाफरमानी करता है तो हमको कैसे महसूस होता है? हमको तो कितना गुस्सा आता है, फौरन मारने दौड़ने लगते हैं, फौरन सजा देने लगते हैं। तो हम खुद अल्लाह की नाफरमानी जो कर रहे हैं उसका क्या? सोचिए इस बात को। मैं कुछ माइक ले लें।